Assalamu alaikum dear students, welcome to all of you. हम ये जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स पेपर ए का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे दैट वाज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी का एक यानी इसी से रिलेटेड जो ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। यानी जब हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं थ्रू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, उस वक्त उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए या क्या कंडीशंस उस वक्त होती हैं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज ऑफन एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है इसको जो एक्सप्लेन किया जाता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल मीन्स एडिशन, marginal revenue means addition to total revenue by selling one more unit of the output, and marginal cost means addition to total cost by producing one more unit of the output. Profit is maximized or a producer strikes his equilibrium when two conditions are satisfied. देखिए कि प्रॉफिट जो है दैट इज मैक्सिमाइज्ड, और या जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं अंडर द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। Under the marginal cost and marginal revenue approach, producer will be maximizing his profits or he will be striking his level of equilibrium when two conditions are satisfied. First condition is when marginal revenue is equal to marginal cost. When marginal revenue is equal to marginal cost, that is producer is earning normal profits and marginal cost is rising. Marginal cost should be at that point rising. Let us understand the significance of these conditions with reference to the table. First we will explain these two conditions with the help of a table. Marginal table जो है it shows marginal revenue, marginal cost and producer equilibrium. Now the units of output are shown on the left hand side column of the table. In the second column marginal revenue is shown, and in the third column or the right hand column it is shown marginal cost. On the left hand column it is units of output on the left hand column. On the right hand column it is marginal cost, and in the central column it is marginal revenue. Now you can have a look at this table. आप इस टेबल पे ज़रा देखिए कि when we are producing first unit of the output, marginal revenue is 12, marginal revenue is 12, marginal cost is 15. इसी तरह से when we are producing two units, marginal revenue is 12, marginal cost is also 12. Marginal cost is declining, marginal revenue remains constant. Marginal revenue remains constant. That is the case under the perfect competition. That is the case under the perfect competition when the marginal revenue or the price remains same. Marginal revenue is equal to average revenue. That is constant. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में टेबल 1 is drawn on the assumption that the product price is constant for a firm as under perfect competition. जैसे कि perfect competition में हम ये लेते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस जो है that is constant for a firm. एक फर्म के लिए एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है that is constant, it does not change, it remains constant as under perfect competition. जैसे कि हम perfect competition में assume करते हैं prices are given, they do not change, and the producer is a price taker and not the price setter. It is assumed to be rupees 12 per unit. Constant average revenue implies constant marginal revenue. जब average revenue constant है, that is when price is constant, average revenue will be constant and marginal revenue will also be constant. That is average revenue will be equal to marginal revenue. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि marginal revenue constant रहता है 12 और marginal cost यहाँ पर आप देख सकते हैं when first unit is produced, marginal revenue is 12, marginal cost is 15. When two units are produced, marginal cost remains the same, marginal revenue remains the same, marginal cost declines from 15 to 12. In the same way, you can see when 3 units are produced, marginal cost still declines to 10. When 4 units, marginal cost declines to 9, then to 8, then to 7, then again it rises to 8, from 7 to 8 to 9, 10, 12 and 15.
मार्जिनल कॉस्ट इज शोन एज इनिशियली राइजिंग एंड सब्सिक्वेंटली फॉलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है इट इज़ इनिशियली, इट हैज़ बिन शोन एज इनिशियली राइजिंग, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट पहले मार्जिनल रेवेन्यू से हायर है फर्स्ट यूनिट के लिए। मार्जिनल रेवेन्यू इज 12, मार्जिनल कॉस्ट इज 15, marginal cost is 15, then ultimately the marginal cost decline, marginal cost declines. This is in accordance with the law of variable proportions. जैसे कि law of variable proportions में यहाँ पर हमें पता है कि when we are using first units of a variable factor, marginal cost will decline. Then when we use more and more units of the variable factor, marginal cost will ultimately will shoot up or will rise. आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ वेरिएबल फॉर्म, फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द राइजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्लाइन होता है तो उसका मतलब होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट राइज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। और इसके बरक्स जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, ना इट conveys the message, or it conveys the meaning that the marginal product must be falling. We know marginal cost is the reciprocal of the marginal product. Now in table 1, marginal cost, marginal revenue is equal to marginal cost in two situations. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेबल में marginal cost और marginal revenue दो जगह पर यानी बराबर आ रहा है. First, when 2 units are produced, that is 12, marginal cost is equal to 12, marginal revenue is equal to 12, and when 10 units are produced, marginal revenue is equal to 12 or marginal cost is equal to 12. That is when 2 units of output are produced and when 10 units of the output are produced. However, while in situation 1, when output is equal to 2 units, marginal cost is falling. हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, और दूसरी सिचुएशन ये थी कि जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हों तो उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट जो है इट शुड बी राइजिंग. मगर जब हम पहले सिचुएशन को देखते हैं, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, और उस वक्त तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, यानी 12 मार्जिनल रेवेन्यू भी है, मार्जिनल कॉस्ट भी 12 है. मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम 15 to 12 to 10 to 9. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग. While in situation 2, जब situation 2 जो है, that is when we are producing 10 units of the output, marginal cost is equal to marginal revenue, that is 12, marginal revenue is equal to 12, marginal cost is also 12, and marginal cost is rising from 10 to 12 to 15. As noted earlier, a producer will strike his equilibrium only when marginal cost is rising. और ये हमने पहले ही कहा कि प्रोड्यूसर सिर्फ उसी वक्त इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों कंडीशन से एक ही टाइम पे फुलफिल होनी चाहिए. मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, implying that the equilibrium will be struck when 10 units of output are produced, not when 2 units of output are produced. और इसका मतलब ये है सिंपली कि उस वक्त अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा जब वो 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा, नॉट जस्ट 2 यूनिट्स. बिकॉज अगर कंज्यूमर 2 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहा है तो उस वक्त अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, मगर मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रहा है फ्रॉम 15 to 12 to 10 to 9. मगर जब आप देख रहे हैं कि when we are producing 10 units of the output, marginal cost is equal to marginal revenue, that is marginal revenue is equal to 12, marginal cost is also 12, but marginal cost is rising from 10 to 12 to 15. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. Given the price, falling marginal cost only increases the difference between total revenue and total variable cost. Given the price, जो प्राइस हमने देखा है कि प्राइस इज गिवन, दैट इज 12 रुपीज, फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट ओनली इंक्रीजेज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. यानी प्राइस जो है वो गिवन है, दैट इज 12 यूनिट्स. अगर मार्जिनल कॉस्ट अभी फॉल हो रहा है, जैसे कि जब हम 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वक्त अभी मार्जिनल कॉस्ट फॉल ही हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल वाइडन. मार्जिनल कॉस्ट चूंकि फॉल हो रहा है तो उससे टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो गैप है दैट विल वाइडन, और प्रोड्यूसर जो है ही विल बी अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. देयर विल बी रूम फॉर हिम टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स फर्दर. तो इस वक्त उस सिचुएशन पर हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि वो अभी वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे, क्योंकि अभी मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका वो डिक्लाइन ही हो रहा है. सो दैट
total revenue minus total cost tends to rise, or that profits tend to rise in a situation of falling marginal cost. उसका ये मतलब है कि total revenue minus total cost tends to rise. Difference between total revenue and total variable cost will rise if marginal cost is falling, or that profits will tend to rise, और या profit जो है simply वो rise हो जाएगा अगर marginal cost क्या हो रहा है, decline हो रहा है. Accordingly, it would be an irrational decision for a producer to strike his equilibrium in a situation of falling marginal cost. और ये प्रोड्यूसर के लिए सिंपली एक इरेशनल बिहेवियर होगा अगर वो उस जगह पर अपना इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा जहां पर उसका मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि उसके लिए अभी वो प्रॉफिटेबल नहीं है. उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि वो अभी और यूनिट्स बेचे मार्केट में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सके जब उसका मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन अभी हो रहा है. तो ये फिजिबल नहीं है उसके लिए कि वो सिर्फ 2 यूनिट्स बेचकर यानी अपना इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करे, क्योंकि वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है. मगर वहाँ पर एक और कंडीशन जो है दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, दैट इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड. तो पहली सिचुएशन जो है व्हेन 2 यूनिट्स आर ऑफ आउटपुट और प्रोड्यूसर, उस वक्त प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, बल्कि वो उस वक्त प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा जब वो 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा या सेल करेगा, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा. अकॉर्डिंगली इट वुड बी, अगर अब ये जो प्रोड्यूसर है 2 यूनिट्स पर ही अपना इक्विलिब्रियम से ट्राई करता है तो ये उसके लिए एक इरेशनल बिहेवियर होगा, क्योंकि उसके लिए अभी गुंजाइश थी कि वो ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा एक्यूमुलेट करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके. इट इज़ ओनली व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग दैट अ प्रोड्यूसर वुड मार्क हिज इक्विलिब्रियम आउटपुट एट अ पॉइंट वायर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ये उसी वक्त मुमकिन है इक्विलिब्रियम जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, राइज होगा. जब मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रहा होगा और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के, तो उस वक्त प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा. लेट अस इलस्ट्रेट दिस पॉइंट विद द रेफरेंस ऑन टू टेबल ऑफरिंग अस 2 डिफरेंट सिचुएशंस एज एंटर. देखिए ये जो 2 सिचुएशंस हैं व्हेन 2 यूनिट्स आर सोल्ड एंड व्हेन 10 यूनिट्स आर सोल्ड, इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल. देखिए अभी आप सिचुएशन 1, व्हेन output is equal to 2 units and marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost is falling. देखिए आप यहाँ पर when 2 units are of output are sold, marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost is falling. Total variable cost किसके बराबर होगा? Total variable cost will be equal to summation of marginal cost. Summation of marginal cost. Marginal cost क्या है हमारा? पहले यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट है 15 यूनिट, दूसरे के लिए क्या है 12. तो समेशन इसका क्या हो जाएगा 27. टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 27. प्रॉफिट कितना होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू कितना होगा? क्योंकि एक यूनिट की प्राइस है 12 रुपीज़, ये प्राइस क्या है 12, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा 12, क्योंकि ये हम ले रहे हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन में हम ये सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं. तो वहाँ पर प्राइसेस गिवन होते हैं, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, तो दैट इज इक्वल टू 12. कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं? 2 यूनिट्स. टोटल रेवेन्यू विल बी 24 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा था हमारा 27. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था हमारा? समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू 27. टोटल रेवेन्यू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू 12 + 12 24. प्रॉफिट कितना आ रहा है? टोटल रेवेन्यू वो आ रहा है 24. टोटल वेरिएबल कॉस्ट 27. 24 - 27 - 3. दैट मीन्स ये जो प्रोड्यूसर है ही विल बी सफरिंग लॉसेज in this situation if he sells only 2 units of the output, even though the marginal revenue is equal to marginal cost, but still the producer will be suffering the losses. वो क्या उसको लॉस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि अभी मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है. अभी उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके. और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर वो सिर्फ 2 यूनिट्स पर, जब वो सिर्फ 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर वो उस वक्त अपना इक्विलिब्रियम से ट्राई करेगा तो ही विल बी सफरिंग फ्रॉम लॉसेस बिकॉज हिज टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन हिज टोटल रेवेन्यू. Now we will look at the situation 2 when output is equal to 10 units. When 10 units of output are produced or sold, producers total revenue will be equal to
टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 120। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 यूनिट्स के लिए वो आप यहाँ पर देखते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12। तो ये समेशन इसका बन रहा है, समेशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो नाउ इट कम्स इक्वल टू 100। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारा 120, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा 100। 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 20। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक तो ये कंडीशन कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरी कंडीशन ये है कि marginal cost is should be rising, marginal cost should be rising at the point of equilibrium. Thus we find that the difference between total revenue and total variable cost tends to rise as output is increased from 2 to 10। तो हमें ये पता चलता है अभी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो वाइडन हो रही है, ज़्यादा हो रही है एज आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 2 to 10। इन फैक्ट इट इज़ ओनली व्हेन आउटपुट इज 10, it is only when output is equal to 10 that the value of profit is maximized। यानी ये सिर्फ उसी वक्त अब हासिल हो रहा है हमें जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, जब हम 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ये बना रहे हैं, एक प्रोड्यूसर 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उस वक्त उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं। इफ आउटपुट इज इंक्रीज बियॉन्ड 10 यूनिट्स प्रॉफिट विल रिड्यूस। अगर आउटपुट को इंक्रीज किया जाए बियॉन्ड 10 यूनिट्स तो उससे प्रॉफिट जो है प्रॉफिट विल डिक्लाइन। दस इफ 11 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड, नाउ अभी हम सिचुएशन लेते हैं अगर 11 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इफ 11 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड, समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 10 के लिए कितना था मार्जिनल टोटल रेवेन्यू 120, तो 11 के लिए कितना हो जाएगा 132। मार्जिनल टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था 10 यूनिट्स के लिए, 10 यूनिट्स के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट दैट वाज 100। अगर हम अब 11 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू 115। 132 माइनस करेंगे हम इसको 115 तो आएगा 17। तो टोटल प्रॉफिट जो हमारा है दैट हैज डिक्लाइनेड फ्रॉम 20 to 17। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, 10 इफ 11 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 132 while summation of marginal cost is equal to 115, so that profit is equal to total revenue minus total variable cost। total revenue कितना है हमारा 132 minus total cost कितना है 115 is equal to 17 which is less than 20 when output is 10। तो ये आप देख सकते हैं 17 of profit is less than rupees 20 when output was 10 units। तो अगर हम 10 यूनिट से ज़्यादा अब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे हमारी प्रॉफिट लेवल जो है दैट विल डिक्लाइन। फाइनली द कंक्लूजन इमर्जेस दैट इट इज़ ओनली व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो फाइनल कंक्लूजन ये हमें निकलता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा और मार्जिनल कॉस्ट जब राइज हो रहा होगा उसी वक्त सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा और वो अपना प्रॉफिट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा और वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा होगा। यानी फिर से मैं ये बताता हूँ कि फाइनल कंक्लूजन ये इमर्ज हो रहा है हमारा, यानी फाइनल कंक्लूजन हमें ये निकला है कि जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के या मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के और मार्जिनल कॉस्ट उस वक्त इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, उसी वक्त प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, उसी वक्त प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच करेगा और उसी वक्त प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करेगा और मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट वो हासिल कर रहा होगा उस पॉइंट पर जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के और मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा होगा। अब इसी की हम डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन दिखाते हैं। Figure 1 illustrates producer's equilibrium in terms of marginal revenue and marginal cost approach। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर मार्जिनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट।
अभी आप देखिए कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, marginal cost curve, it starts from y-axis, because if output is zero, marginal cost will also be zero. Average revenue and marginal revenue curve जो है, it is a horizontal straight line parallel to x-axis, horizontal straight line parallel to x-axis. आप यहाँ पर देखिए कि ये लाइन स्टार्ट हो रही है y-axis से, ये स्ट्रेट लाइन इसलिए है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्योंकि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, दीज आर कांस्टेंट, दीज रिमेन सेम थ्रू आउट द लेवल ऑफ आउटपुट. अगर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट एक है तो भी प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू सेम रहेगा. अगर 10 है तो भी सेम रहेगा, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहती है. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. नाउ इन फिगर 1, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू OP or price. Average revenue is equal to marginal revenue is equal to OP, that is price, and is assumed to be constant as under perfect competition. ये हम assume करते हैं कि constant है जैसे कि perfect competition में. Accordingly, average revenue and marginal revenue line is drawn as a horizontal straight line parallel to x-axis. Marginal cost curve is shown to be U-shaped. Marginal cost curve जो है, it is shown to be U-shaped. First the marginal cost जो है high होगा, then it will decline, reach its minimum, then it again will rise up. The marginal cost curve has been shown as a U-shaped curve. As usual, marginal revenue is equal to marginal cost under condition, under two situations. Under two situations. यहाँ आप देखिए marginal revenue और marginal revenue जो है marginal cost के बराबर हो जा रहा है, होता है दो situations में. At point Q1, when 2 units of output are produced, or when L units of output are produced, and at point Q2, when output is equal to OL2. In situation 1, marginal cost is falling, but in situation 2, marginal cost is rising. Marginal cost is rising. आप देखिए कि situation 1 में marginal cost जो है it is falling. Marginal cost जो है it is falling. Even though the marginal cost is equal to marginal revenue at point Q1, it will not be it will not be considered a point of equilibrium. It will not be considered a point of equilibrium because the marginal cost is still declining, and there is plenty room, or there is a possibility for the producer to maximize his profits till the marginal cost becomes equal to marginal revenue and marginal cost starts rising. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि again at point Q2, where output is equal to OL2, in situation 1 marginal cost is falling, but in situation 2 marginal cost is rising. In situation 1, when marginal cost is equal to marginal revenue at point Q1, marginal cost is falling, but in situation 2, that is Q2, when marginal cost is equal to marginal revenue, marginal cost is rising. आप देख रहे हैं कि marginal cost now has cut the marginal revenue and average revenue curve at point Q2, and now it has risen above the average revenue and marginal revenue curves. We know total revenue is equal to area under MR. Total revenue is equal to the area under the marginal revenue corresponding to a given level of output. Total revenue जो है it is equal to the area under the marginal revenue curve corresponding to a given level of output. This is equal to OL1 Q1P in situation 1. आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू जो है इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द मार्जिनल रेवेन्यू करूँ, under the area under the marginal revenue curve corresponding to a given level of output. This is equal to OL1 Q1P in situation 1 when 2 units of output are produced. Likewise, total variable cost is equal to area under the marginal cost curve corresponding to a given level of output. Total variable cost जो है, total variable cost is the summation of marginal cost. Area wise अगर हम diagrammatically इसको दिखाएंगे, total variable cost will be equal to area under the marginal cost curve corresponding to a given level of output. It will be equal to OL1 Q1 OL1 Q1 Q1R OL1 Q1R in situation 1 when OL1 units of output are produced. आप यहाँ पर देख सकते हैं OL1 Q1R is greater than the area OL1 Q1P. यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और total variable cost, summation of marginal cost is total variable cost. Total variable cost is greater than total revenue. Total revenue is equal to OL1 Q1P.
टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज OL1Q1R। तो इस वक्त कंज्यूमर जो है ही विल बी सफरिंग लॉसेज, ही विल नॉट बी अचीविंग एनी लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम और ही विल बी सफरिंग लॉसेज, नॉट हैविंग एनी प्रॉफिट्स, implying that in situation 1 the firm is not covering even its variable costs. This is not a viable situation for a firm to undertake production. यानी इस सिचुएशन 1 में फर्म अपने वेरिएबल कॉस्ट्स भी कवर नहीं कर पा रही है, और तो ये फर्म के लिए एक वेरिएबल सिचुएशन नहीं है तो कि वो उस लेवल पर प्रोडक्शन करे। Corresponding to situation 2, when marginal cost is rising at point Q2, we find that at point Q2 when OL2 units of output are produced, marginal cost is rising at point Q2. Marginal cost is rising at point Q2. We find that total revenue will be equal to the area under the area under the marginal revenue. That will be equal to OL2 Q2P, OL2 Q2P. Total revenue will be equal to the area under the marginal revenue करूँ, not the marginal cost करूँ but the marginal revenue करूँ, that will be equal to OL2 Q2P at the level of output OL2. यानी at point Q2 when producer is selling at the level of Q2 and marginal cost is rising, marginal revenue is equal to marginal cost, but marginal cost is rising. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि total revenue is equal to OL2 Q2P because total revenue is equal to the area under the marginal revenue करूँ, OL2 Q2P. Total variable cost will be equal to the area under the marginal cost करूँ, total variable cost is the summation of marginal cost. Therefore, total variable cost will be equal to the area under the marginal cost करूँ, that will be equal to OL2 Q2R, OL2 Q2R। यहाँ पर आप देख सकते हैं OL2 Q2R, OL2 Q2R, total variable cost will be equal to OL2 Q2R. Evidently total revenue is greater than, आप यहाँ पर देखिए भी OL2 Q2R, ये एरिया बड़ा है या एरिया जो है OL2 Q2P, ये एरिया ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू OL2 Q2R, ये एरिया छोटा एरिया है क्योंकि इससे हम OL1 Q1P डिडक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं PQ1R, ये छोटा एरिया है। PQ1R एरिया जो है ये एरिया स्मॉलर एरिया है एज कंपेयर टू OL1 Q1P इस एरिया से। इसलिए हम देखते हैं जब हम 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं या और OL यूनिट्स ऑफ आउटपुट एक प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस वक्त उसका जो टोटल रेवेन्यू होगा दैट विल OL2 Q2P और टोटल कॉस्ट उसका जो होगा दैट विल टोटल वेरिएबल कॉस्ट OL2 Q2R। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये तो एविडेंटली क्लियर है OL2 Q2P दैट इज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन OL2 Q2R, इससे ये ज़्यादा बड़ा है। Evidently total revenue is greater than total variable cost. Thus of the two situations total revenue minus total variable cost is maximized in situation 2। तो दूसरी सिचुएशन जो है इन बोथ सिचुएशंस में से दूसरी सिचुएशन में टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस है दैट इज बीइंग मैक्सिमाइज्ड when output is equal to OL2 and marginal cost is rising. Accordingly, the producer will strike his equilibrium only in situation 2 when marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost is rising. तो accordingly जो producer जो है वो equilibrium strike करेगा उस situation में, इन सिचुएशन 2 में जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और मार्जिनल कॉस्ट जो है अभी वो राइज हो रहा है। तो
ये था हमारा आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम के रिलेटेड, जो हमने दिखाया थ्रू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू।